रहा है आजकल प्रतिदिन। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? Are you all able to see the screen? Unit 1, Unit 1 syllabus. क्रोम नहीं दिख रहा है? This was the attendance in the previous class. Shall I begin? Yes, ma'am. Okay. So yesterday we have completed with all the essential elements of the contract. Okay. And give me a second. So, writing registration, certainty, possibility of performance, expressly not, agreement not expressly declared void. ना हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था, ठीक है? Now today I have to start with kinds of contract. Now as you can see here in the classification format में मैंने आपको पहले ही बताया ये material जो है I have prepared very concretely for the students of CACMA Foundation, but it is equally applicable to your course as well. तो बहुत ही जो है कम स्पेस में मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ आपको एकदम टू द पॉइंट चीजें मिली. And as I have told you that in detail, you'll keep on giving the examples and the illustration while answering for your traditional exam, that is your college. Okay. So now you can see there are like different kinds of contract on the basis of enforceability, creation, and the execution. Okay. So on the basis of enforceability, if we talk, there are like three types of like four types of contract: valid contract, voidable contract, void contract, unenforceable contract. Okay. Now what is valid contract? When we say a valid contract, we have been already talking about the valid contract since the very first class. A contract which fulfills all the essential elements of the valid contract as laid down by the section 10 of the Contract Act. हमने पहले ही आपको बता दिया है कि essential elements क्या होते हैं valid contract. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में essential contracts, essential elements ही डिस्कस किए थे कॉन्ट्रैक्ट के. ठीक है, so whatever the essential elements we have discussed till now, if those are present, the contract is said to be a valid contract as per section 10. मेरी आवाज नहीं आ रही है अपूर्वा? I'm perfectly clear. Aryan, clearly audible now? Thank you so much. Now, क्या बोल रहे? So a contract which fulfills all the essential elements. Thank you. Now listen to me. A contract which fulfills all the essential elements of a valid contract as laid down in the section 10 of the Contract Act. आपने ये देखा ना? आपने ये देखा जितनी भी essential elements हैं ये हमने define करा है किसमें? Heading में देखिए section 10, 29, 56. So according to section 10, all the agreements are contract if they are made up of if they are having all these essential elements what we have discussed in the previous classes. ठीक है, तो सबसे पहले कि जो एनफोर्सेबिलिटी की बेसिस पे पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. और हम कब कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है?
जब उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है। एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब एक पार्टी ने ऑफर करा है, दूसरे ने एक्सेप्ट करा है, दोनों पार्टी के बीच कंसिडरेशन हुआ है, दोनों पार्टी के बीच जो है, जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी प्री कंसेंट हुआ है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, ये जितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जितने ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सब के अधीन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील हुई है दो पार्टी के बीच जो कि लीगली एनफोर्सेबल है, तो वो क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू that if one or more of these elements or conditions are lacking, such a contract will either be void, voidable, illegal or enforceable. अगर इनमें से कोई भी अब मेंशन एलिमेंट में से अगर कोई भी एलिमेंट मिसिंग हुआ, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ चला जाएगा, वॉइड या वॉइडेबल या अनफोर्सिएबल या इलीगल, किसी एक कैटेगरी में चला जाएगा फटाक। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्री कंसेंट नहीं हुआ तो वॉइडेबल, सर्टेन नहीं हुआ तो वॉइड, ठीक है, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो इलीगल, ठीक है, अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, अनएनफोर्सिएबल। बात समझ रहे मेरी? तो ये हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ आ जाइए दूसरा, आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द void contract. Void contract as per section 2 subsection I, it is defined as I है, J है, इसको एक मिनट में करेक्ट करके भेज दूंगी। आई थिंक ये दिस इज जे, नहीं है, वॉइडेबल है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे वॉइड, मैंने वॉइड करा। voidable contract, voidable contract क्या होता है, an agreement enforceable by law at the option of one or more parties thereto। तो मैंने आपको पहले भी फ्री कंसेंट वाला जो एलिमेंट बताया था बच्चों, फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट में थोड़ा तो आप डिस्कस किया है फ्री कंसेंट, जब किसी के दबाव में एग्रीमेंट ना हुआ हो, के दबाव में ना फ्रीली हुआ हुआ है, हो। यस voluntary मैम। consent between two parties. मतलब कंसेंट जो हो वो फ्री हो, किसी दबाव में ना हो, ना ना किसी कोएशन हो, ना अनड्यू। अब वो अलग अलग दबाव क्या होते हैं, वो 5 तरह के दबाव होते हैं, उनको हम लोग जो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी दबाव में हुए होंगे अगर, ठीक है, दबाव में ना हो तो वो फ्री कंसेंट कहलाते हैं, लेकिन अगर दबाव में हुए हैं तो वो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा कि मान लीजिए धमकी देता है कि तुम अपनी जमीन जो है 10,000 में मुझे लिख दो, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप करवा लूंगा, वरना मैं तुमको मरवा दूंगा, वरना कुछ भी, कुछ भी। इट कैन बी थ्रेटनिंग टू द लाइफ और द प्रॉपर्टी और एनीवन लाइफ। ऐसा नहीं कि मुझे ही धमकी देगा, मेरे बच्चे को धमकी देगा, पड़ोसी को मारने की धमकी, किसी को भी, किसी की भी लाइफ को या प्रॉपर्टी को थ्रेटन करने की धमकी दे रहा दिया और उस डर से हमने करा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है। अब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल की कैटेगरी में जाता है, वॉइडेबल की कैटेगरी में कि हम चाहे तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। हम एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कोर्ट के सामने और हम बोलेंगे कि भाई ये हम कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, ये जबरदस्ती करवाया गया मुझसे। तो अब क्या है कि इट इज an agreement enforceable by the law at the option of one or more parties thereto। तो मतलब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है हम आजीवन डरे रह जाए, हम 10,000 में अपनी जमीन लिख करके और शांति से बैठे रह जाए, क्योंकि हमें हमेशा डर रहेगा कि जिस दिन हमने जो है कंप्लेन करा उस दिन वो मेरे बच्चे को मरवा देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, और जब हम आजीवन डरे रह गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वैलिड। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, वैलिड। ऑप्शन है मेरे पास, इसलिए हम कहते हैं वॉइडेबल है। जिस दिन हमने अपना डर हटाया वो कैसा हो जाएगा, वॉइड। ठीक है, जिस दिन हमने अपना डर हटाया उस दिन वो वॉइड की कैटेगरी में चला जाएगा। जब तक हमने अपना डर नहीं हटाया तब तक वो वैलिड रहेगा। अंदर हिडन क्या है, वो भी वॉइडेबल है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, तो इसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि वॉइडेबल क्या होता है। रिसेंड, वॉइड, कंटिन्यू, डिक्लाइन, कैंसिल, वॉइड, हाँ, कंटिन्यू, वैलिड। यस संजना, वेरी गुड। पड़ोसी का चलिए जी, क्या चल रहा है भैया, आर्टिस्ट मस्ट हैव एग्रीमेंट। ये क्या बोल रहे थे बेटा, कौन है पड़ोसी, आदित्य। एनीवेज, अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर वॉइडेबल को हमने कैंसिल करा दिया तो भी वॉइड हो गया, ये तो एक ग्राउंड हो गया।
लेकिन बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट देख लीजिए, मान लीजिए एलिमेंट सर्टन नहीं है, बोलते हैं कि भैया दो पैरेलल लाइन को मिला दो तो हम तुमको जो है 1 लाख रुपए अभी तुरंत दे देंगे, मिलाते रहो आजीवन मिलाओ, नहीं मिलेगा। तो क्या है, सर्टन नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, दो पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कहो कि ऐसा है जिस दिन माल आएगा इंग्लैंड से तो हमको जो है 2 बोरी जो है उसमें से गेहूं दिलवा देना, बड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, तो अभी तो माल आना इंग्लैंड से सही नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, सर्टेन नहीं है। तो इन सारे कंडीशन को क्या माना गया है, एसेंशियल एलिमेंट माना जा रहा है। और अगर ऐसे एग्रीमेंट हो गए हैं तो वो क्या है, वॉइड है। वॉइड मतलब नल है, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि सिरे से खारिज होता है, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि एज पर सिचुएशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, चित्र एक सेकंड। A valid contract not capable of being enforced in court because of some technical defects like stem, clerical mistakes, writing। कई बार ऐसा होता है ना कि डेट डालना भूल गया, ठीक है, सिग्नेचर करना भूल गया, मतलब कुछ ऐसा क्लेरिकल एरर हो गया, 400 को जो है मतलब 4000 लिख दिया, गलती से हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे डिफेक्ट जो एक्चुअली में धोखाधड़ी के पर्पज से नहीं हुआ था, बट हो गया बिकॉज ऑफ सम क्लेरिकल डिफेक्ट। ठीक है, अब इस पे स्टैम्प लगा है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा रह गया है जो अभी करना बाकी है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन को हम कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लेंगे, अनएनफोर्सेबल फॉर अ टाइम मान लेंगे, और वो जो क्लेरिकल मिस्टेक है उसको करेक्ट करके दोबारा से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड या इस तरह के एलिमेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक की मतलब गड़बड़ी हो गई, उसको करेक्शन करना है। ठीक है, इसके अलावा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप बेहतरीन समझ रहे होंगे, हम लोगों ने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा की थी कि अगर किसी भी तरीके का, मतलब वो गैम्बलिंग वाला एग्जांपल जो दिया था, घर जो है किराए पे लिया और उसमें गैम्बलिंग करने के लिए लिया है, ठीक है, और और क्या, मान लीजिए चोरी का फोन बेचा, ठीक है, तो इस तरीके से। तो इफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज fraudulent or it implies injury to the person or the property of another, or it is anyhow opposed to the public policy, it could all be considered under illegal contract। Is this clear? On the basis of enforceability समझ में आ गया आपको ये 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट। क्लास okay, now on the basis of creation देखिए, on the basis of creation there are 3 types of contract। The first one is express contract, the second one is implied, and the third one is quasi contract। मुझसे quasi कितने बीच में एक बार, चलिए आज बताते हैं कि एग्जीक्यूटेड नाम ही बता रहा है, नहीं सॉरी, एक्सप्रेस नाम ही बता रहा है कि क्या है, आपने बोला है। कल भी मैंने किसी बात पे बताया था कि कूली वाला एग्जांपल दिया था, तो वहां पे एक्सप्रेस नहीं है, वहां पे क्या है, इम्प्लाइड है। पर चॉकलेट उठा लिया और 5 पे रख के चल दिया, इम्प्लाइड है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बोलकर या लिख कर अपनी कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने कहा कि आपका ये स्कूटी जो है मुझे 15,000 में चाहिए, 25 तारीख को आप दे जाइएगा, दे दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको जो है 16 तारीख को पेमेंट करवा दूंगा। आपने बोला, ठीक है, या आपने पेपर पे लिखा कि आपकी जमीन जो है प्लाट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखा कि आपकी जमीन जो है इतने लाख की, इतनी गज, इतने फुट, ठीक है, इतने स्क्वायर फीट जमीन, इतने रेट से हमको इतने इस दिन जो है रजिस्ट्री करानी है। तो जब भी आपने वर्ड्स या राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, बोलकर या लिखित में, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है वो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और जब भी आपने जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे कि वो कूली वाला मैंने एग्जांपल दिया था या चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, आपकी कंडक्ट से ये प्रिज्यूम हो गया, ठीक है, दोनों पार्टी ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग you people have made the contract is known as implied contract। Any contract entered into between the parties by the words, whether spoken or written, is known as express contract according to section 9 of the Contract Act. Insofar as the proposal or the acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed। An express promise results into an express contract। For example, B writes to C
that I propose to sell my Maruti 1,000 car to you for rupees 90,000. C sends a letter to the of acceptance to B. A ने B को कहा, लेटर भेजा कि मैं जो है मारुति 1,000 आपको 90,000 रुपए में बेचने के लिए ऑफर देता हूँ. ठीक है. बी ने वापस से एक लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का कि मैं खरीदने के लिए राजी हूँ. This is a written express contract. Similarly, Raju asks a watch mechanic to repair his watch, and the mechanic agrees to the offer. राजू ने बोलकर बोला कि भैया मेरी घड़ी बना दो, और राजू जो मैकेनिक है वो मान गया उसकी घड़ी बनाने के लिए. कैसा कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों? ओरल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है. मैम इलीगल थोड़ा बहुत वॉइडेबल से रिलेट नहीं करता है क्या? इलीगल वॉइडेबल से रिलेट नहीं करता है क्या? लीगल देखो वॉइडेबल में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर आपने कंप्लेन नहीं किया, ठीक है, दुनिया की नजर में उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं. ठीक है, दुनिया की नजर में उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं. दबाव में किया है, ये बात कैसे पता चलेगी दुनिया को? जब आप बताओगे. इलीगल में क्या है? आपने जो मकान किराए पे दिया वो गैम्बलिंग के लिए दिया, ये तुरंत जो है इलीगल हो गया. ये दुनिया की नजर में कभी भी वैलिड नहीं होगा. वॉइडेबल में क्या है? जब तक आप कंप्लेन नहीं करोगे, एविडेंस नहीं दोगे, तब तक वो दुनिया की नजर में वैलिड चल रहा है. So there is a difference. Try to feel it. Okay. Now, तो express समझ में आ गया. अब आ जाइए implied पे. A contract may be created by the conduct or act of the parties, though there may be no words used orally or in writing for the purpose. According to Section 9 of the Contract Act, in so far as the proposal or the acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. An implied promise results in an implied contract. For example, B gets down from the compartment of the train and allows C, a coolie in uniform, to carry his luggage to the taxi stand. ये example मैंने दिया था. ठीक है. Though B does not ask C for his services, yet the law implies that he has agreed to pay for the service of C due to his conduct or attitude. ठीक है. अब ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखित में कुली और उस व्यक्ति के बीच में नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, एक लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ कुली की ड्रेस में व्यक्ति जो है उसका सामान उठा करके बस स्टैंड की तरफ चल दिया बाहर, और वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया. इसका मतलब क्या है? वो एग्री कर दिया इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि भाई वो यूनिफॉर्म में है, कुली है, उसका काम है सामान उठाना. अगर वो सामान उठा रहा, आपने नहीं रोका, इसका मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रजामंदी दे रहे हैं. ठीक है. Though he does not ask for his services, yet the law implies that he has agreed to pay for the service of C due to his conduct or attitude. Here is an implied contract between B and C. Similarly, when Ravi boards a DTC bus, an implied contract comes into being and he is bound to pay the prescribed fare for his travel. आप बस में बैठे, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन DTC की बस में बैठे, और बैठते ही क्या है, आपके पास जो है कंडक्टर पैसे लेने आ गया. ठीक है, और आपने जो है उसको नेक्स्ट स्टॉपेज के पैसे दे दिए. ठीक है, उसने टिकट काट कर दे दिया, तो वो बोलेगा नहीं, आप बोलोगे नहीं, लेकिन ये इम्प्लाइड है कि आप बस में बैठे हो तो आपको फेयर देना है. ठीक है, तो दीज आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब आ जाइए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि रास्ते में जाते हुए मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई डूब रहा है और अगले ने उसे बचाया, और उसने खुशी में आकर के फिर बोला कि वो उसको 10,000 रुपए देगा या वॉच देगा या कुछ भी देगा. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे तो बोल के बनाया नहीं था कि भाई हम डूबेंगे, हमें बचाना तो हम तुम्हें 10,000 देंगे. ऐसा तो हुआ नहीं था. इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांस. तो कॉन्ट्रैक्ट विच हैज नो एफिनिटी विद द लॉ. ठीक है, but law infers or recognizes the contract under special circumstances, and such contract created under special circumstances are known as quasi contract, और इनको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बन गए, इन्हें बनाया नहीं गया है, ऑफर एक्सेप्टेंस से तो कुछ नहीं हुआ है, ये बन गए. ठीक है. अब यहाँ पे देख लीजिए, इफ अनदर कैटेगरी ऑफ इम्प्लाई, मतलब ये भी एक तरीके का इम्प्लाइड ही तो है कि वो डूब रहा था, आप बचाने चले गए. ठीक है. Now, certain obligations do not arise out of an agreement, but they come up due to operation of law. या फिर आपको किसी का सामान गिरा हुआ मिला,
ठीक है, आप जो है ऑफिस में है, वहां आपको जो है किसी का मोबाइल फोन मिला, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या बनता है कि आप जो है अब उस सामान को के ओनर को ढूंढेंगे, ठीक है, बीइंग अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, your authority is, your duty, implied duty is that you will find out the owner of that particular good and will try to give him back. In case if you don't find the owner, then there are certain cases when you can sell it out, the goods are मतलब after a reasonable time period. Aryan Mishra, ma'am, please give example again. Now, क्या बोले थे, certain obligations do not arise out of an agreement, but they come up due to the operation of law. Such obligations have been called relations resembling those created by contract and dealt with under Section 68 to 72 of the Contract Act. Strictly speaking, quasi contract cannot be called contract. अगर देखा जाए तो अगर एसेंशियल एलिमेंट का ग्राउंड लिया जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक प्योर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं माना जाएगा कि ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, भैया डूब रहा था, या जिसका सामान खोया वो ये तो बोला नहीं था कि अभी हम खुआ रहे हैं अपना सामान, मेरा ले आना जरा, ठीक है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला तो नहीं हुआ था, तो प्योरली आप इसको कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कहेंगे। लेकिन क्या होता है कि सिचुएशन होती है, और जो जिसको वो सामान मिलता है, जिसको वो सिचुएशन मिलती है, उसको इम्प्लाइडली उस बात को निभाना पड़ता है। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बट आर इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन पार्टी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, quasi contracts are based on the principle of equity, ठीक है, quasi contract इस बात का ग्राउंड लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बना दे रहा है कि भाई जिसको जस्टिस चाहिए, इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है, none should be allowed to enrich himself unjustly at the expense of other, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को लाभान्वित करे, अपने आप को कोई फायदा पहुंचाए किसी और के खर्चे पे, किसी और के सामान पर, किसी और की कुर्बानी पर, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ही आधार पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जैसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि अगर किसी का सामान गिरा, खोया, पाया, आपने पाया, तो उसको आप उस तक पहुंचाएं, आप उस सामान को से जो है सुविधा नहीं ले सकते, यू कांट enrich yourself unjustly at the expense of others. This is what is principle of equity, ठीक है, for example, B supplies C a lunatic with necessaries suitable to his condition in life. B is entitled to be reimbursed by C's property, ठीक है, मान लीजिए कोई B है, उसने C एक ल्यूनाटिक कमजोर व्यक्ति को उसकी लाइवलीहुड के लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो दिया, ठीक है, अभी जब हम लोग माइनर का केस पढ़ेंगे बच्चों, कॉम्पिटेंसी ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टी में, तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से एक माइनर के लिए नेसेसरी सप्लाई की कंडीशन में आप नेसेसरी सप्लाई, अगर मान लीजिए उनको लाइवलीहुड के लिए कुछ चीजें अर्जेंट है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनका खान पान के लिए, या उनकी तबियत के लिए, और किसी व्यक्ति ने उनकी मदद कर दी तो कर सकते हैं, ठीक है, और उसके लिए वो क्लेम भी ले सकते हैं, और क्लेम कैसे, पैसे से नहीं, मतलब क्योंकि पैसा नहीं है तभी तो आपको जरूरत पड़ी उनको मदद करने की, कोई माइनर है, कोई अनसाउंड माइंड है, तभी तो आपने उनकी मदद की, और जब अगर आपने मदद की है तो आप उनसे क्लेम ले सकते हो, लेकिन क्लेम आप सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी से ले पाओगे, तो ये सब हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बस हल्का सा समझ लीजिए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया आपको समझ में आया, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट किसी सिचुएशन में, किसी स्पेशल example do you want? Aryan, which example you are asking for? Am I audible to the students class? Am I got it? Okay. And tell me, this is attendance for today in the previous two classes also. Okay.
दिस वाज द अटेंडेंस। कल से भी डाउन हो गई अटेंडेंस आज। उन्होंने अपने ऑब्लिगेशंस पूरा परफॉर्म कर दिया। क्लास एम आई ऑडिबल? ओके। तो अगर दोनों पार्टी ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर दिए, काम पूरा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड वेयर नथिंग रिमेन्स टू बी डन बाय नीदर पार्टी। ठीक है, किसी भी पार्टी द्वारा अब किसी भी पार्टी द्वारा कोई भी ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग नहीं दिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। फॉर एग्जांपल, बी बाइज द बुक फ्रॉम सी फॉर ₹150 एंड बी पेज द प्राइस एंड सी हैंड्स ओवर द बुक। ठीक है, ये 150 की किताब खरीदा बी ने सी से। बी ने जो है 150 दिया, सी ने उसको किताब दे दिया, काम खत्म। Executed contract. It is an executed contract because both the parties have performed their contractual duties and nothing remains to be done by either party. Secondly, can anyone send the link? रितिका को लिंक दे दीजिए अगर किसी के पास हो तो। ठीक है, सेकेंडली, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अगर अभी किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन किसी भी पार्टी द्वारा पेंडिंग है, ठीक है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर पूरा या थोड़ा या कुछ भी अभी बाकी है किसी भी पार्टी द्वारा, हो सकता है दोनों पार्टी द्वारा, हो सकता है किसी एक ही पार्टी द्वारा अभी ऑब्लिगेशन बाकी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अभी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। तो किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? वो एग्जीक्यूटरी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये भैया ये बच्चों का इम्पेशंस देखो, मैं पढ़ा रही हूँ उससे कोई मतलब ही नहीं है, यू आर जस्ट सिटिंग फॉर द लिंक। For example, B promises to supply 60 kg rice to C for ₹1,500. This contract is executory because both the parties shall perform their respective obligations at the future date. तो अभी जो है डिसाइड हुआ है कि परसों जो है या संडे को जो है या 10 तारीख को जो है 60 रुपए किलो के हिसाब से जो है 60 किलो जो है राइस जो है 60 kg राइस जो है 1,500 रुपए के हिसाब से जो है पहुंचा देने के लिए। ठीक है, तो अभी वो संडे को या 10 तारीख को पूरा होगा, तो बोथ ऑफ द पार्टीज आर स्टिल येट लेफ्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, लास्ट वाला जो है एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटरी मतलब आकाश कि दो लोगों के बीच जो भी तय हुआ है कि भाई तुम जो है मैं तुम्हें ये किताब दूंगा, तुम बदले में मुझे 150 रुपए देना। ठीक है, तो हमने जो है किताब दे दिया, लेकिन अभी अगले ने 150 रुपए नहीं दिया है, तो अभी क्या है? बाकी है कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए हैं, अगर किसी भी पार्टी द्वारा अभी वो टर्म्स एंड कंडीशन पेंडिंग है, तो अभी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी माना जाएगा। अगर सारे टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टी द्वारा कर दिए गए हैं, तो क्या माना जाएगा? एग्जीक्यूटेड माना जाएगा। आई होप नाउ आई एम क्लियर आकाश। ओके, नश्रिया, श्रुति,
श्रेया, श्रुति, रितिका, लिंक दे दे बेटा। चलिए ये लिंक है, ये लिंक है, मार्क योर अटेंडेंस, लीव द क्लास। थैंक यू। मैम इम्प्लाइड इन पॉसिबल डिफरेंस क्या है? और कल की क्लास में बताते हैं, आज तुम लोग को लिंक की जल्दीबाजी। मार्क योर अटेंडेंस, कल की क्लास में इम्प्लाइड और पॉसी में डिफरेंस देखेंगे। आर्यन पूछ रहे हैं। ओके, एक इंट्रोडक्टरी जो होना चाहिए लॉ का, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अब कल की क्लास में फुल फ्लेजेड हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली चैप्टर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया। I hope it's all clear to all of you. Now, if you have marked your attendance, you can leave the class. Thank you.